ہیں اسلام آباد میں اسامہ ندیم کے قتل کیس کے حوالے سے شیخ رشید احمد صاحب وفاقی وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں، مان چکے ہیں کہ جناب یہ نوجوان ناحق مارا گیا، لیکن یہ ایک پہلا واقعہ نہیں اپنی نوعیت کا۔ گزشتہ سال جنوری میں ہم نے ساہیوال میں پنجاب پولیس کی جانب سے ایک اینٹی ٹیرر اسکواڈ کی جانب سے کارروائی دیکھی، جس میں ایک گاڑی میں موجود ایک فیملی پر اندھوناک فائرنگ کی گئی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں سوائے 2 بچوں کے باقی گاڑی میں موجود تمام افراد جہاں بحق ہو گئے۔ پھر اسی طرح اسامہ ندیم کا یہ واقعہ سامنے آتا ہے۔ اس سے پہلے بھی شفاعت آپ کو یاد ہوگا کہ 2 اسٹوڈنٹس گاڑی میں جا رہے تھے، ان کو بھی پولیس نے ایسے ہی روکا تھا، لیکن جب وہ اسٹوڈنٹس نہیں رکے، ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی، تو جب وہ نہیں رکے، کیپٹل میں واقعہ پیش آیا تھا، تو انہوں نے بالکل پیچھے سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ بغیر جانچے ہوئے کہ اندر کون بیٹھا ہوا ہے، کیا اسٹریٹ فائر کر دینا جائز ہے یا نہیں جائز۔ جو اسامہ کے والد ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب ایک دن پہلے پولیس کی اسامہ سے تلخ کلامی بھی ہو گئی تھی، اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس نے اس کو مزہ چکھانے کی دھمکی بھی دی تھی۔ ساتھ میں والد یہ بھی کہتے ہیں کہ اسامہ کو 17 گولیاں ماری گئی تھیں۔ میرے بیٹے کو رات کو 2-2:30 بجے سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے دہشت گردی کر کے 16 یا 17 جو ہے نا وہ فائر کیے ہیں، اور جس کے نتیجے میں وہ جنباگ ہو گئے۔ ڈی ایس پی صاحب، ایس پی صاحب، انہوں نے یہاں پہ ہمارے سامنے انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ جو ہے نا وہ یہ بچہ جو ہے نا ایک قصور تھا، اس کو ہمارے اہلکاروں نے جو ہے نا وہ ان کی غلطی ہے۔ وزیر داخلہ سے، وزیر اعظم پاکستان سے التماس کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دلایا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ دہشت گردی کا پرچہ درج کیا جائے۔ ان کے گاڑی کے ٹائر، کسی بھی ٹائر پہ جانا کوئی فائر نہیں ہوا، اور گاڑی کے ونڈ سکرین پہ، اور یہ انہوں نے کھلم کھلا دہشت گردی کی ہے۔ جناب یہ واقعہ G10 کے نزدیک پیش آیا، جہاں پر پولیس کا موقف یہ ہے کہ شمس کالونی میں ڈکیتی کی اطلاع ملی تھی، جس کے بعد ایک مشکوک گاڑی کو انہوں نے رکنے کا اشارہ کیا، جب وہ نہیں رکی تو انہوں نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ کیا پولیس کی ٹریننگ یہی ہے کہ اسی طرح سے کسی بھی گاڑی کے اوپر اندھیرے میں چھپ کے اگر وہ اشارہ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں آج کل ٹھنڈ ہے، اور پولیس والے جو ہیں وہ پورے ڈفل وغیرہ پہن کے اور پورا وہ اپنے آپ کو لپیٹ کے کسی بھی ناکے پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ناکے پہ روکنے کے آداب کیا ہیں، پروٹوکولز کیا ہیں، کیا ایس او پیز ہیں؟ کیا کسی بھی جگہ پہ گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا جائے، اور اگر ڈرائیور کو مثال کے طور پہ ٹھنڈ کی وجہ سے یا لو ویزیبلٹی کی وجہ سے یا دھند کی وجہ سے یا فاگ کی وجہ سے یا اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا گاڑی کی ہیڈ لائٹس آف ہونے کی وجہ سے اگر پولیس والے نظر نہیں آتے تو وہ کیا سمجھے کہ اس کو گولیاں مار دی جائیں گی؟ ایک ایکسکیوز یہ بھی دیکھیے کہ گاڑی کے شیشے کالے تھے، ہم نہیں دیکھ سکتے تھے کہ گاڑی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ خیر جی، اسی والے سے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے تعزیت کے لیے اسامہ کے گھر بھی گئے، اور ساتھ میں ان کا کہنا تھا کہ وہ ملزموں کو کسی بھی صورت میں نہیں بخشیں گے۔ افسوسناک واقعہ ہے، اور ایک انسانی جان جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہوئی ہے۔ یقین جانے کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو۔ ہم نے اس میں ٹیررسٹ کا بھی لگایا ہے، 780A بھی لگائی ہے، 302 بھی لگایا ہے، اور ایک بے گناہ نوجوان لڑکا شہید ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اندھوناک واقعہ ہے۔ اس کی جتنی مذمت شیخ صاحب، ثانیہ ساہیوال بھی اسی طرح چھوڑیں یار، ہمیں اپنے تک رہنے دیں، ہمیں پنڈی تک رہنے دیں۔ اور اسی افسوسناک واقعے کے حوالے سے بات کریں گے اسامہ کے والد ندیم یونس صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنی ٹیم کی جانب سے اور ARY کی جانب سے تعزیت پیش کرتے ہیں، اور دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کے صدمے کو کم نہیں کر سکتی۔ یقیناً بہت بڑا لاس ہے، اسپیسیفکلی جوان بیٹے کا لاس، وہ بھی ناحق لاس، اس جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جیسے پولیس کو بھی بتایا کہ آپ کے بیٹے نے اہلکاروں کے ساتھ جھگڑے کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، یہ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ ہم 40 سال سے اسلام آباد میں مقیم ہیں۔ ہمارا جو ہے نا وہ پڑھا لکھا خاندان ہے۔ میرے والد صاحب کا جو ہے نا وہ تعلیم سے ماہر تعلیم تھے وہ، اور ہمارا ان جھگڑوں سے بلا وجہ جھگڑوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں جب یہ جو ہے نا وہ مجھے یہ پتہ چلا، کل جب یہ پتہ چلا کہ جو ہے نا یہ کام ہوا ہے، پولیس نے جو ہے نا میرے بیٹے کو اس طرح شہید کر دی ہے، تو اس ٹائم جو ہے نا وہ مطلب اس ٹائم میرے بیٹے نے، دوسرے بیٹے نے یہ مجھے بتایا کہ پاپا کل جو ہے نا وہ شام کو
उसामा ने मुझे बताया था कि पुलिस से उसकी कोई लड़ाई हुई है, तलख कलामी हुई है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसको किस पुलिस से हुई है और कहाँ पे हुई है, ये उसने नहीं बताया। तो इसके अलावा तो मुझे नहीं पता कि जना वो, क्योंकि उसकी ज़िंदगी ने जना मोहलत ही नहीं दी है कि वो मैं उससे पूछता कि जना वो किस से उसका झगड़ा हुआ है। तो नदीम साहब, ये झगड़ा हुआ था, कोई आपको इस हवाले से पता चला? आपके बेटे ने बताया कि किस नोयत का झगड़ा था, किस नोयत की धमकियां दी गई थी उसामा को? ये अगले दिन की बात है, इतना मौका ही नहीं मिला ना, ये तो मौका ही नहीं मिला। और उसके बारे में मुझे नहीं पता कि उसने मुझे तक डायरेक्ट नहीं बताया। उसने बड़े बेटे को बताया, फिर जना वो अपने बड़े भाई को बताया। तो उस बड़े बेटे ने दूसरे दिन जब ये कत्ल उसका हो चुका, तो उस वक्त जना उसने मुझे बताया, जब ये एक बेईमाना जना वो कत्ल उन्होंने किया है उसका, तो तब उसने ये शक जाहिर किया कि हो सकता है ये इसका उनके जो है ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पे उन्होंने इसको मारा हो, क्योंकि जितनी बेदर्दी से मारा है वो ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पे ही हो सकता है। ये कुछ अच्छा नदीम साहब मुझे बताइएगा कि अब तो जीआईटी भी बन चुकी है, जो 5 पुलिस एहलकार हैं उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मिल चुका हुआ है, जो तफ्तीश अभी तक हो रही है, आप उससे मुतमईन हैं? उम्मीद तो अल्लाह की ज़ात से करते हैं। हम किसी इंसान से इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इंसाफ दिलाए। इंसाफ अल्लाह दिलाएगा और उसी से हम उम्मीद रखते हैं। रशीद अहमद साहब आए हैं आपके यहाँ और वो कल बता रहे थे कि जनाब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, इन लोगों के ऊपर हमने 780A लगाई है, 302 लगाई है और वो हाई कोर्ट के जज से इसकी इंक्वायरी कराएंगे। ये बातें हो रही हैं, वादे हो रहे हैं, आप मुतमईन हैं? शेख रशीद साहब ने भी ये यकीनदानी कराई थी। असद उमर साहब से बात हुई थी, उन्होंने भी इस बात की यकीनदानी कराई है। अली अवान साहब आए थे, उन्होंने भी ये बात की है कि कल जना वो इस बात को वो कर देंगे कि जना हाई कोर्ट का जज है ना वो इसको प्रिजाइड करेगा। सही, बहुत शुक्रिया जी। साथ नदीम साहब मौजूद थे जो कि सामा के वालिद हैं। इसी वाले से हमारे साथ जनाब साबिक आईजी इस्लामाबाद ताहिर आलम साहब मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ताहिर साहब, ये जो कुछ भी हुआ ये समझ में ना आने वाली बात है। एक गाड़ी को, पुलिस का जो मौक़िफ़ है अगर उसी पे पहले बात कर लें, गाड़ी को उनके बकौल इशारा दिया जाता है रुकने का, गाड़ी नहीं रुकती, पुलिस गाड़ी पे 21 गोलियां या 17 गोलियां फायर करती है। उसमें गाड़ी के दरवाज़ों पे फायर है, गाड़ी के फ्रंट शीशे पे 5 फायर है, गाड़ी के पिछले शीशे पे फायर है, गाड़ी के बोनेट में, गाड़ी के रेडिएटर पे, साइड के दरवाजे पे, गाड़ी के फेंडर्स पे फायर है। एक भी गोली टायर पे नहीं लगती, जिसका मतलब ये है कि पुलिस गाड़ी को रोकना नहीं चाहती थी, गाड़ी के अंदर मौजूद बंदे को मारना चाहती थी। क्या पुलिस की यही ट्रेनिंग है? पुलिस से इंतहाई बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, जिसकी वजह से पूरी पुलिस जो है वो बैक फुटेड पर और डिफेंसिव मोड में है। और इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ट्रेनिंग ये नहीं है कि इस तरीके से अगर कोई शख्स ना रुके तो उसे रोकने के लिए गोलियां मार दी जाएं। सेल्फ डिफेंस का जो कानून है वो किसी भी शख्स को, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे आम आदमी हो, वो उस सूरत में फोर्स यूज करने की इजाज़त देता है जब कोई उस पर हमला आवर हो या कोई गन तान ले तो आप भी उस पर फायर कर सकते हैं। बाकी अगर कोई नहीं रुक रहा तो आपको उसका पीछा करना चाहिए और उसे पकड़ने की तमाम तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। बेशक वो भाग जाए लेकिन उसकी जान लेने का कोई भी हक हासिल नहीं है। इस केस में पुलिस ने पुलिस के जो जवान ये दो गाड़ियां थी जो कश्मीर हाईवे पर थी जी। इन्होंने जब वायरलेस पर इतला मिली कि एक वाइट कलर की गाड़ी में मुलजम भागे हैं डकैती करके, तो उन्होंने इस गाड़ी को रोका। ये गाड़ी नहीं रुकी, वो उसके पीछे गए और उसके बाद फिर उसे रोकने के लिए जब वो नहीं रुकी, मुसलसल उसका पीछा करते रहे, तो पीछे से फायरिंग की गई है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि मकतूल को 6 गोलियां लगी हैं और 6 की 6 गोलियां जो है पीछे से लगी हैं। पीछे से गोली लगी और आगे वो विंड स्क्रीन को भी उसने
गोलियों ने तोड़ा है। ताहिर साहब ये भी तो तो कहा गया ना इसमें, कि जी क्योंकि गाड़ी में से जो पहले भी हो- फायर हुआ था और देखा गया जी गाड़ी में से तो कोई असला ही नहीं मिला, तो ये तो खुद मतलब पुलिस नहीं, पूरे नहीं, पूरे गाड़ी महकमे गाड़ी के से लिए कोई तो ये फायर खबर- नहीं हुआ, गाड़ी से कोई फायर नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि ये अदम तरबियत या नाकस तरबियत का नतीजा है कि जो उन्होंने उस वक्त हिजान में आके ये ब्लंडर किया, और ये उनका इनफरादी फेल है। कोई मैं नहीं समझता कि उन्हें किसी इरादतन उन्होंने ताहिर साहब, ये कत्ल कोई अपनी किया हो। अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं है। या- हमने इससे पहले भी देखा है कि पहले भी अदम तरबियत की वजह से आप उसको कह लें, जो स्ट्रेट हमने कराची में भी ऐसे बहुत सारे वाकया देखे कि जी सीधी पुलिस की स्ट्रेट फायर से एक बेचारी लड़की जो रिक्शे में जा रही थी वो जान बहक हो गई। हमने इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जी तरबियत का फुकदान अमल था। का केस सबके सामने। अमल का केस सबके सामने। लेकिन ताहिर साहब, क्या आपने देखा है कि उसके बाद जिस पुलिस एहलकार की गोली से कोई कीमती जान चली जाती है, क्या उसको फिर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है, उसको भी फांसी की सजा दी जाती है, उस पर भी दफा 302 का मुकदमा होता है? अक्सर केसेस जो हैं आप देख लें कि उनमें बाकायदा 302 के मुकदमे दर्ज हुए हैं, मुलजम गिरफ्तार हुए हैं और उनको अदालत के सामने फिर पेश किया गया है। और जो हमारा इस केस में आप देखें कि ना सिर्फ 302 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, बल्कि सेक्शन 7 जो है एंटी टेररिस्ट एक्ट का, वो भी लगाया गया। हालांकि रात के 2 बजे का वक्त था, कोई पब्लिक उधर नहीं थी कि उसमें खौफ व हरास पैदा हुआ हो, लेकिन इसके बावजूद एक आम आदमी अगर कत्ल करता तो कभी भी 780 ना लगती। तो पुलिस ने अपने तौर पर, जो पुलिस के अफसरान हैं, वो उन्होंने कोई कोताही नहीं की। ये भी इसका खमियाजा भुगतेंगे, इनका मुकदमा भी अदालत में जाएगा। अब बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो कसास और दियत का कानून है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप वर्षा से राजीनामा कर ले इस कत्ल के केस में, और जो है उसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। इस जो कानून का जो ये शिक है, इससे पुलिस वाले भी फायदा उठाते हैं जिस तरह दूसरे लोग। और ये एक ऐसा डेलिबरेट लूप होल है जो कि बार बार कानून तोड़ने वालों को, लोगों की जिंदगियों से खेलने वालों को एक सेफ एग्जिट फराहम कर देता है। ताहिर आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साबिक आईजी पंजाब हमारे साथ साबिक आईजी इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे इस सारे मामले के हवाले से। समझ में नहीं आता मदिया कि ये लोग, अब जो पुलिस वाले हैं, ये बंदूकें हाथ में लेके क्या कोई हॉलीवुड की फिल्म शूट कर रहे होते हैं? ये किस जोन में होते हैं कि गाड़ी अगर रुक रही और उस पर फायर कर दिया? इस तमाम तर सूरत हाल को आप कवर नहीं कर सकते। अगर अदम तरबियत का भी फुकदान था तो उसके बावजूद एक कीमती जो जान है वो चली गई। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे ये जो दियत की बात कर रहे थे ना, तो शफात जी वो केसेस जिसमें रेप केसेस के हवाले से बात कर रहे होते ना, यहाँ पर स्टेट को आके खड़ा होना चाहिए, यहाँ पे स्टेट को मुद्दई बनना चाहिए, यहाँ पे स्टेट को मुद्दई बनना चाहिए कि इतने बड़े अहम इंस्टीट्यूट की जानिब से, जब वहाँ के लोगों की जानिब से, एहलकारों की जानिब से कोई इतनी बड़ी गफलत का वाकया पेश आता है कि जिसमें किसी की जान चली जाए, तो स्टेट को यहाँ पर मुद्दा ही बन के खड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे स्टेट दियत देने के लिए भी सामने ना है। यहाँ पे स्टेट जो है वो इन मुल्जिमों को, मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। मतलब देयर शुड बी नो टॉक अबाउट इट, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली जनाब। अब जनाब जिक्र Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.